کروں گا میں وہ سوال ڈیفینیٹلی کروں گا جو آپ منع کر رہے ہیں. بس پھر وہ اگر آپ خود ہی یہ جواب دے رہے ہیں تو میرے جواب لینے کی کیا ضرورت ہے. صحافت کا تو پہلا اصول یہ ہے کہ سوالات وہی کرنے ہیں جو آپ کو اچھے نہ لگے. ہو سکتا ہے مجھے آپ کے سوالات اچھے نہ لگ رہے ہوں لیکن میرا کام ہے ہنس کے آپ کو جواب دینا. بے شک وہ صحافی نہ ٹھہرا جو شرارت نہ کرے. جی جی یہ آپ مانتے ہیں؟ نہیں، شرارت نہیں، ہمارا ایک فرض ہے کہ وہ سب چیزیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو ان کے دلوں میں سوال ہیں، چاہے نیگیٹو ہیں چاہے پازیٹیو ہیں، ہماری ڈیوٹی ہی یہ ہے وہ سوال پوچھنا. جو یہ ڈیوٹی نہیں ادا کرتا وہ صحافی نہیں. اگر آپ سوال جو ہے آپ میری مرضی کے کریں گے تو میرا آپ کے بارے میں تاثر یہ ہوگا کہ بس ایسے ہی ہے، صحافی صوفی تو کوئی نہیں ہے. تو میں سوال ٹھیک پوچھ رہا ہوں نا؟ ابھی تک تو ٹھیک ہی پوچھ رہے ہیں. یہ وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو مسعود محمود کے بارے میں سن رکھا تھا وعدہ معاف گواہ کا، کہ وہ بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے خود چھوٹ گیا تھا. لیکن مجھے نہیں یہ لگتا کہ جنرل فیض حمید کو چھوڑ دیں گے اور عمران خان کو پکڑ لیں گے. میں آپ کے خلاف گواہی دوں، وعدہ معاف گواہ بنوں، میں گواہی دے دوں، آپ کو سزا ہو جائے، مجھے معافی مل جائے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سول میں تو یہ ہو جاتا ہے جس طرح مسعود محمود کے معاملے میں ہوا کہ بھٹو کو پھانسی مل گئی، مسعود محمود خود چھوٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھٹو نے حکم دیا تھا، کروایا میں نے ہے. پھر میں ایک مسلمان سے، ایک انسان سے پوچھوں یا مولوی سے پوچھوں کہ یہ وعدہ معاف گواہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی ان سے پوچھیں جا کے، بالکل ضرور پوچھیں. کیا آپ کی بھی کبھی کسی نے کوئی ویڈیو بنائی، بلیک میل کیا؟ پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے ہمارے بارے میں کیا کیا ان کے پاس رپورٹیں ہیں. وہاں تو ایسی رپورٹیں ہوتی ہیں. کبھی دھمکی ملی؟ کئی دفعہ ملی ہے، نوعیت لیکن اس کی کوئی مشہوری نہیں کرتے ہم. نوعیت کیا تھی؟ ہر طرح کی، کوئی آپ کی لائف کو تھریٹ، آپ کی عزت کو تھریٹ، آپ کی گالیاں، محبت برے پیغام، صبر کر کے ہر طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اور لیکن اس کی کوئی مشہوری کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے، پروفیشن ہے، یہ ہمیں سہنا پڑتا ہے. اور ہم سہ لیں گے، سہتے رہتے ہیں. کوئی کبھی 9 ماہ میں 7 میرے صحافی اور آپ کے صحافی بھائی مار دیے گئے پاکستان میں. ویری سیڈ. بڑا وہاں صحافی کی زندگی بڑی مشکل ہے. یہاں بیٹھ کے تو آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. پاکستان جیسا ملک جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقت ہے اور جرنلسٹ بڑے کمزور ہیں، وہاں اس طرح کی ہم جرت تو کر لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے اس کے پھر کانسیکوینسز ہوتے ہیں، پھر ہمیں نتائج بھی بھگتنا پڑتے ہیں. 12 سالہ ترقی کا منصوبہ کے نام سے آپ نے ایک کالم لکھا. جس جنگ اور جیو کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے ایک لفظ نہ چھاپا اور نہ چھپنے دیا، لیکن BBC اردو نے چھاپ دیا. آخر اس میں ایسا کیا تھا؟ یہ میں نے اس وقت لکھا تھا. اب تو سارے اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں. جب جنرل فیض کا بہت عروج تھا اور جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، تو اس وقت میں نے یہ کالم لکھا تھا. جنرل فیض حمید اور باجوہ کے اوپر کالم لکھ ڈالے اور اب بھی لفظ استعمال کیا کہ ایجنسیاں ایسے دوائی ڈالتی ہیں. موجودہ اداروں کے سربراہان کے نام کیوں نہیں لیتے؟ میرا خیال ہے جس حد تک ہم لیتے ہیں شاید ہی کوئی لیتا ہو. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی بھی فوج کے خلاف نہیں لکھ رہا تھا تو 2003 میں میری پہلی کتاب آئی تھی جرنیلوں کی سیاست، اور جب اس کی لانچنگ سیریمنی ہوئی تھی بہاولپور میں تو پانی چھوڑ دیا گیا تھا اس گراؤنڈ میں، اور اس جس حال میں وہ ہونا تھا اس کو تالے لگا دیے گئے تھے. تو تھوڑا ماضی بھی دیکھ لیا کریں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا. یوں ہی فتوے لگانا اور کسی کو غدار، کسی کو کافر، کسی کو اسٹیبلشمنٹ کا حامی قرار دینا مناسب نہیں ہے. تو آپ بھی جنرل فیض حمید کے ستائے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی بھی ملک کا وہ صحافی جو آزاد تھا وہ ضرور جنرل فیض صاحب کا، اور یہ جو پہلے میں نے نام لیے ہیں جنرل پاشا اور جنرل ظہیر، ان سب کے ستائے ہوئے ہیں. کیا عمران خان صاحب کے اوپر سارے ہی کیس سچے ہیں؟ مجھے کیسز کا پتہ نہیں، لیکن عام طور پر یہ جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں جھوٹے ہی ثابت ہوتے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے یہ تصور کیا تھا کہ عدت میں نکاح والا کیس بھی بن جائے گا پپیتے، نمکو، چاول سمگلنگ اور بھینس چوری کرنے کے بعد؟ دیکھیں اگر یہ جو ہے جرم ہے
पपूते चोरी करना, तो फिर केस तो बन ही सकता है, कल मेरे पे बन जाए फिर क्या। पहले चौधरी ज़ोरुल्लाह पे भैंस चोरी का इल्ज़ाम लग गया था, कल हम पे भी कोई लग जाएगा। लेकिन निकाह जैसा आला मर्तबा जिससे ईमान मुकम्मल होता है निकाह करने के बाद, उसके ऊपर तो केस नहीं बनना चाहिए था, जिससे दीन इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया गया। ये तो जिसने बनाया उससे पूछे ना मैंने बनाया ना मैं गवाह हूँ, ठीक है। तो मैं तो समझता हूँ कि कोई केस भी नहीं बनना चाहिए। कोई भी आप तो सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, मैं तो कोई केस भी कहना चाहता हूँ कि सियासतदानों के खिलाफ ना बने। जनरल फैज़ हमीद साहब की इदारा जाती गिरफ्तारी हुई, आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या हैसियत होगी और क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, फौज के जो अंदरूनी मामलात हैं उनका हमें सिविलियंस को बहुत कम इल्म है। खुशाब में पैदा हुए और खुशाब को किसी दौर में कोई जो है वो दारुल हुकूमत बनाना चाह रहा था जोहराबाद में, ऐसे क्यों ना हुआ? वो इसलिए ना हुआ कि इस्लामाबाद शायद आबो हवा के एतबार से बेहतर थी। जो चॉइसेस हुई थी उनमें जोहराबाद भी एक शामिल था, बल्कि वहाँ जो अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस था वो बन भी गया था और वहाँ वो शिफ्ट भी हो गया था। आपकी बात तो बड़ी सच साबित हुई, बल्कि आपने 6 कहे थे, बाजवा साहब ने 7 साल गुजारे बतौर आर्मी चीफ। नहीं, पर उस वक्त अंदाज़ा हो जाता है ना, हमारी एक आंख और हमारी एक नाक और हमारा एक कान ज़रा फालतू होता है साफ़ियों का। लोग आपसे ही जानना चाहते हैं सादा लफ्ज़ों में, क्या मौजूदा इंतखाबात में धांधली हुई और मौजूदा हुकूमत का हक था कि वो हुकूमत करे? मेरा ये ख्याल है कि फ़ौरन मैंने उस वक्त से अब तक कहता आया हूँ कि फ़ौरन धांधली पे कमीशन बनना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब प्लस आसिफ अली जरदारी साहब और इक्वल टू आर्मी चीफ, तीनों मुल्क के एक पेश के ऊपर हो के हुकूमत चला रहे हैं, ये इत्तेफाक आइंदा भी रहेगा? नहीं, ये तो बदलते रहते हैं। देखें, ये हर पार्टी हर लीडर का अपना अपना मफाद होता है। इसी तरह हमारे जो अदारे हैं उनका भी अपना मफाद होता है, कब उन्हें कौन सूट करता है। इसी बात को आपके साथ जोड़ के लोग कहते हैं कि मीडिया ग्रुप एक मखसूस और प्लस आप इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करते हैं और इससे जमहूरियत के ऊपर मनफी असर पड़ता है। जब ऐसे क्यों है? नहीं, वो देखें, हर एक की अपनी राय है, मुझे भी इसी तरह अपनी राय रखने का हक हासिल है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट को या रियासत को या फ़ौज को गालियाँ निकालते हैं, मेरा उनसे इत्तेफाक नहीं है। ये तो गलत। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि किसी मुल्क में वो मुल्क ही नहीं होता जहाँ फ़ौज ना हो। True. और जिस मुल्क में फ़ौज ना हो वहाँ जमहूरियत नहीं आ सकती, क्योंकि अमन व अमान नहीं होता। आपकी तकरीब रनमाई रखी और उसमें भी पानी छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ा जिनके खिलाफ आपने लिखी थी किताब। ये तो आप अब खुद अंदाज़ा लगाए ना। ये तो अब आपको ये अंदाज़ा तो हो गया, तो ये अंदाज़ा लगाना आपको मुश्किल लग रहा है। कोई मुश्किल नहीं है। ये जलसों में पानी छोड़ना तो हमने सुना था, लेकिन साफियों की तकरीब ये में सारा पानी उस वक्त के अखबारों में छपा था 2003 के। आज शरीफ साहब के ऊपर किताब लिखी, बड़े बड़े मौज़ूआत के ऊपर किताबें लिखी, बाज़ छपी और बाज़ ना छप सकी। आइंदा भी ये नीयत है लिखने की? जी, अभी मेरी 2 किताबें हैं। अभी जर्नैलों की सियासत का 3रा एडिशन बिल्कुल मैं जाऊंगा पाकिस्तान तो छप के तैयार हो चुका होगा। आप इतने एतमाद से कह रहे हैं कि वो छप जाएंगी और शाया हो जाएंगी? मेरा ख्याल है कि छप जाएंगी। नवाज शरीफ साहब वापस आए और उम्मीद है पाकिस्तान के नाम से उनको वापस लाया गया। क्या आपको मियां नवाज शरीफ साहब से ये उम्मीद थी? नहीं, मैं तो लंदन आया था जी जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी, जो पहले वाली थी। तो मैंने तो उस वक्त भी उनसे कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, आपकी हुकूमत आने वाली है, तो आप इंतकाम का दायरा ना बढ़ाएं, इसको ख़त्म कर दें। आपने मशवरा दिया था? मशवरा दिया था। उन्होंने कहा कि आप इमरान की सपोर्ट करने आए हैं। मैंने कहा नहीं, मैं जमहूरियत की सपोर्ट करने आया हूँ। तो वो उस दिन से उनके और मेरे मामलात कोई इतने अच्छे नहीं रहे। हैरत है कि मियाँ साहब ने आप जैसे दानश्वर और करीबी साथी, दोस्त, बाप, छोटा भाई होते हुए भी आपका मशवरा ना माना और आज सज़ा काट रहे हैं। नहीं, कब वो सज़ा काट रहे हैं? वो इक़्तिदार में हैं, वो उनको हमारी बातें ना, हम इतने करीबी साथी हैं, ना इतने दोस्त हैं, ना छोटे भाई हैं, हम तो साफ़ी हैं और हमें यही एजाज़ पसंद है। बाकी एजाज़ात के बारे में हमारी दिलचस्पी नहीं है। मियाँ साहब विक्ट्री स्पीच देकर भी वज़ीर आज़म ना बन सकें तो ये कामयाबी तो नहीं है ना? ये तो कब मैं कह रहा हूँ, लेकिन इक़्तिदार तो मिल गया ना। नवाज शरीफ साहब दोबारा लंदन यात्रा करेंगे? मैंने बताया ना, मेरा तो उनसे अब कांटेक्ट नहीं है।
बार बार आपके इंटरव्यू देख के पता चला कि आप तो इंतहा की हुस्न परस्त हैं। आप तो छुपाया हुआ है, मैं जाहिर कर देता हूँ। होता तो हर कोई है। एक इंटरव्यू वो कौन है जिसको हुस्न पसंद नहीं, वो तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई। ख्वाजा सराह का इंटरव्यू करते हुए सवालात किए, क्या आप भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके? नहीं, देखें, दो एतराज़ हुए हैं उस इंटरव्यू पे। एक पहला एतराज़ तो कई लोगों ने ये किया कि जी ख्वाजा सराह का इंटरव्यू क्यों। तो पहली बात तो यह है कि भाई वो भी इंसान है, उनका भी इंटरव्यू होना चाहिए। किसी ने अगर कामयाबी हासिल की है, किसी ने अगर शोहरत हासिल की है, तो लोग उसको देखते हैं। तो पहले सवाल का, पहले एतराज़ का तो जवाब ये है। दूसरा सवाल ये है कि जी आपने फ़लाँ सवाल क्यों किया। ठीक। और उसमें भी फिर पख ये लगाई गई कि जब आपको उसने मना किया था तो आप फिर क्यों किया। ये सवाल भी आपसे ही पूछ सकता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान को जब एक साथ देखा, इत्तेहाद करने जा रहे हैं या हो रहा है, तो अकेले ने क्या सोचा? मुआवजा नए रंगी सियासत दौरान तो देखें, वो मशहूर शेर हैं। तो ये सियासत में इस तरह होता रहता है। भुट्टो को फांसी दिलवाने वाले MRD में शामिल हो गए थे। अगर हम एटम बम होने के बावजूद, इतनी बेहतरीन फोर्स होने के बावजूद कच्चे के डाकुओं से नहीं लड़ सकते, तो किसको जवाब दें और किससे सवाल करें? नहीं, असल में ये हक़ाइक़ और तारीख़ से जो है वो ज़्यादती है इस तरह की बात करना। अमेरिका के अंदर भी जो है नो गो एरियाज़ हैं, इंग्लैंड में भी हैं नो गो एरिया। मैंने ये कश्मीर के ऊपर अगर बात करूं तो क्या नज़र आता है, अंधेरा है या उजाला है, कोई मुस्तकबिल है अभी भी? नहीं, हम बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। मेरा ख्याल है कि जो चुनाव फार्मूला है ना, वो बेहतर था। वो विन विन है कि भाई आप अपनी पोजीशंस को थोड़ा नरम करके रास्ते खोलें, और चुनाव फार्मूला वाज द बेस्ट। जो जहां है वहां रहे। नहीं, और रास्ते खोलें ताकि कश्मीरी आए जाएं, हम भी जा सकें। और उससे एक ना सिर्फ ये कि कश्मीर के मामले में बेहतरी होगी, इंडिया पाकिस्तान के मामलात में बेहतरी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।